آج ویو 360 میں اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل امینا محمد پاکستان میں تعلیم کے شعبے کو درپیش چیلنجز پر کیا رائے رکھتی ہیں۔ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اب امریکہ کے سکھ بھی میدان میں۔ جب بھی ایسی کوئی مشکل وہاں آتی ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے اپنے گھروں پر مشکل آن پڑی ہو۔ اور امریکہ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال میں چین اور مغربی ملکوں سے پیچھے کیوں ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کرے تاکہ متاثرہ افراد کی بحالی ممکن ہو سکے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے دنیا کو افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پر بھی زور دیا اور پابندیاں ہٹانے کی بھی بات کی۔ سمرقند میں ہونے والی اس کانفرنس میں علاقائی طاقتوں کے رہنماؤں کی ملاقاتیں جاری ہیں، جس میں خطے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حل تلاش کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے سربراہی اجلاس میں علاقائی ممالک سے بین الاقوامی نظام کو اثر نو تشکیل دینے کا مطالبہ کیا اور اسے مغربی عالمی اثر و رسوخ کے لیے ایک چیلنج قرار دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ پاکستان کو پائپ لائن سے گیس کی سپلائی ممکن ہے کیونکہ اس کے لیے بنیادی ڈھانچے کا ایک حصہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس حوالے سے دونوں ملکوں نے بہت جلد اگلا اجلاس اسلام آباد میں بلانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں چین کی وزارت خارجہ کے مطابق سی پیک منصوبوں کو جلد مکمل کرنے پر زور دیا گیا۔ ازبکستان کے دارالحکومت سمرقند میں جمعرات کو شروع ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں خطے کے جن 8 ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی، ان میں روس، چین کے علاوہ پاکستان اور خطے کے 5 اہم ملکوں کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ یوکرین روس جنگ کے باوجود چین اور بھارت کے رہنماؤں نے روسی صدر پوٹن سے ملاقاتیں کیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کی بھی روسی صدر سے ملاقات ہوئی۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک پولیٹیکٹ سے اس وقت عارف انصار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عارف، خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر پوٹن سے ملاقات کتنی اہم ہے؟ جی اسد، جو اس کی امپورٹنس ویسے تو ہے ہی ہے کہ جو دنیا کے کانٹیکس میں جو گلوبل بیلنس آف پاور کی ایکویشن چل رہی ہے، اور جو یوکرین سے جس کو آپ نے ریفر بھی کیا شاید کہ وہاں کے معاملات چل رہے ہیں، یورپ کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں ایس سی او کانفرنس کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھ گئی۔ ملاقات ہے اس کا کانٹیکس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو اس وقت سیاسی حالات پاکستان میں ہیں اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو کی حکومت کو ہٹانے کے سلسلے میں جو بات چیت یا جو الزامات لگے، اس سے بھی جو تھا ظاہر ہوا کہ شاید ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ روس سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے یا روس سے انرجی کے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، گیس پائپ لائن ایٹسیٹرا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں تو جو ملاقات ہوئی ہے وہ لگتا ہے وہ کنٹینیوٹی ہے، بات آگے بڑھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری کہنا کہ پاکستان کو انرجی کے اس وقت جدید پرائسز کا سامنا ہے، اور گلوبل پرائسز جو انرجیز کی ہیں اس میں بہت اضافہ ہوا، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہوا ہے، تو اس لیے ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ایک اچھے ریٹس پہ جو ہے اپنی انرجی سپلائی لائنز کو سیکیور کر سکے، جس میں روس ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر پوٹن کا یہ کہنا کہ پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی ترسیل ممکن ہے اور اس کے لیے بنیادی ڈھانچے کا کچھ حصہ چونکہ پہلے سے موجود ہے، کتنا ممکن ہے یہ منصوبہ؟ اس پر دوسرے ملکوں کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں ظاہری بات ہے کہ ہم اگر اس کو گلوبل، پھر وہی بات ہے بیلنس آف پاور کانٹیکس میں دیکھیں تو ماضی میں یہ بات ہوئی ہے کہ امریکہ نے اس سلسلے میں شاید کچھ اعتراض کیا تھا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے جو ہے بلکہ ایک قسم سے اپنی جو گیس کی انرجی سپلائیز ہیں اب وہ اس روس سے بڑھا دی بجائے اس کے کم کرنے کے، اور اس کانٹیکس میں کہ جو ہندوستان ہے وہ تو امریکہ کا ایک اسٹریٹجک الائی بھی ہے، لیکن نان دا لیس یہ ایک ایکویشن چل رہی ہے پوری دنیا میں، بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں ملک، اور پاکستان کے پاس بھی اس وقت آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے جائے، کیونکہ وہ ایران سے بھی ماضی میں پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بہت اس عرصے ذکر رہا، لیکن وہ بھی جو ہے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کے پاس شاید چوائس نہیں ہے،
اور وہ بیلنس بھی کرے گا اور اپنی بات چیت کو آگے بھی بڑھائے گا۔ تو کانفرنس میں چین اور بھارت شریک ہیں ایک طرف، جن کے باہمی تعلقات ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت کشیدہ رہے، کچھ پوائنٹس پہ جا کے کافی ورڈز پہ گئیں چیزیں۔ ان ملکوں کی قیادت کا اس کانفرنس میں اکٹھا ہونا آپ کے خیال میں کتنا اہم ہے؟ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کافی طاقتوں کے آپس کے جو تنازعات تھے اس کے باوجود۔ یہی ایک دلچسپ موضوع ہے جو اس وقت دنیا کی صورتحال کا ہے کہ ایک طرف تو ہندوستان ایک کوڈ الائنس میں بھی شامل ہے، امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ایلائی بھی ہے، دوسری طرف جو ہے اس نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھایا ہے اور کسی طریقے سے اس کو جو ہے نقصان پہنچانے سے بچایا ہے۔ کہ دوسری طرف چین کے ساتھ اس کے تعلقات ہندوستان کے خراب رہے ہیں اور بارڈر کلیشز ہیں اور اس پہ بھی بات چیت آگے پیچھے چل رہی ہے، لیکن نن دا لیس وہ ہندوستان SCO کا بھی ممبر ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمرجنگ پاورز کا کلب ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشڈ پاورز ہیں جس میں یورپ اور امریکہ آ جاتا ہے، نیٹو آ جاتا ہے، جو کا سیکیورٹی الائنس کا ہے۔ رائٹ، تو عارف ایک چیز میں کنکلوڈنگ کرنا چاہ رہا تھا، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہ رہا تھا کہ روس کے صدر نے چین کے صدر کا جو شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یوکرین کے معاملے پہ غیر جانبدار موقف اپنایا۔ آپ کے خیال میں ان اہم معاملات پر چین اور روس کا کوئی ممکنہ اتحاد امریکہ کے لیے چیلنج بن سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ یہاں بھی ریڈار پہ یہ بات ہے کہ یہ روس اور چین کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور دونوں نے چائنا نے اس کو جو یوکرین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کو بڑے نپے تلے انداز میں وہ مینٹین کر رہا ہے کہ اپنے ویسٹ سے تعلقات بھی خراب نہ کرے امریکہ سے، جو کہ آلریڈی ٹینس ہیں، اور دوسری طرف وہ جو ہے روس کی مدد بھی کرتا رہے۔ لیکن یہ ہے کہ SCO جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا شاید کہ یہ ایک کلب ہے جو کہ زیادہ امپورٹنس بڑھ رہی ہے، جس طرح سے یورپ اور یوکرین سے ریلیٹڈ، انرجی ریلیٹڈ، گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ تعلقات، اور دنیا میں فوڈ اور انرجی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں یہ الائنس کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے۔ بہت شکریہ عارف انصار آپ کا۔ اب بات کر رہے تھے ہم سے SCO کانفرنس کے حوالے سے جو اس وقت اور اس کے شکریہ۔ بعد کی جو ڈیولپمنٹس اور پالیٹکس بن رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس نیو یارک میں جاری ہے۔ کووڈ-19 کے 2 سال بعد یہ پہلی بار ہے کہ UNGA کا یہ اجلاس ان پرسن ہو رہا ہے۔ اس سال باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بدترین اثرات، کووڈ کی عالمی وبا اور روس یوکرین جنگ جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اس سال ہونے والے اجلاس میں بچوں کی تعلیم کے معاملے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ ماہرین تعلیم اس بات پر پریشان ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں جن بچوں کی تعلیم کا حرج ہوا یا ہو رہا ہے، اس کا کیا حل نکالا جائے۔ وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے UNGA کا یہ تعلیمی سمٹ کور کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ انشمن، دنیا کو تعلیمی شعبے میں جن مسائل کا سامنا ہے ان میں اس خصوصی سمٹ کا انعقاد کتنا اہم تھا، اور کیا پاکستان سے متعلق بھی کوئی خاص بات ہوئی اس میں، خاص طور پر اب جب پاکستان سیلاب سے بھی نمٹ رہا ہے اور بچوں کی ایک بڑی تعداد اسکول نہیں جا سکتی، ایک بڑے علاقے کے اسکول تباہ ہو چکے؟ جی ہاں اسد، یہاں میں UN کے باہر موجود ہوں اور آج ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن سمٹ کا پہلا دن ہے جسے یوتھ موبلائزیشن ڈے کہا گیا ہے۔ UN کے آنکڑوں کے مطابق پچھلے سال 24 کروڑ سے بھی زیادہ بچے اسکول نہیں جا پائے، اور اس سال بھی 37 کروڑ سے بھی زیادہ بچوں کو اسکولی خوراک نہیں مل پائی ہے۔ تو یہ جو تباہی ہوئی ہے اسے روکنا اور ایجوکیشن سیکٹر میں دنیا بھر کے امپرومنٹس لانا، سدھار لانا، تبدیلیاں لانا، یہی اس کانفرنس، اس سمٹ کا مقصد ہے۔ اس سمٹ کے دوران 5 مدوں پر بات ہوگی، جس میں اسکولز، ٹیچرز، کریکولم، ایجوکیشن فائنینسنگ اور ڈیجیٹل لرننگ شامل ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، سوموار یعنی 19 کے دن ورلڈ لیڈر جو ہیں وہ اس معاملے میں اپنی کمٹمنٹ کا اظہار یہاں کرنے والے ہیں، اور اب تک ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ شہباز شریف خود وہ اسپیچ نہیں ڈیلیور کریں گے، لیکن ویڈیو کے ذریعے 12:15 سے 1 ایسٹرن ٹائم کے درمیان یہ اسپیچ ویڈیو کے ذریعے ڈیلیور کی جائے گی۔
मैं यहाँ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि आज आप पीछे जैसे देख रहे हैं कि भारी तादाद में यूथ लीडर्स पूरी दुनिया भर से यहाँ आए हुए हैं, जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरे मुल्कों के लीडर्स, एनजीओ सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करेंगे और अपने जो एक सुझाव है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के, वो बात उनके सामने रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समिट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहां पर जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने इस समिट के बारे में इसके गोल्स क्या हैं इसकी जानकारी मीडिया को दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हमने भी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से ये पूछा कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है, जो इकोनॉमिक डेवास्टेशन हुई है, उसके चलते इकोनॉमिक चैलेंजेस एजुकेशनल चैलेंजेस पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। Well, right now there is a crisis. वहाँ इस वक्त एक गैर मामूली तौर पर बड़ा बहरान है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी नुमाया किया है। हंगामी रद्दअमल के तौर पर यकीनन हमने बहुत से इक़दाम किए हैं जिनमें इमदादी इदारे लड़कियों और लड़कों के स्कूलों में आर्जी मदद फराहम कर रहे हैं, लेकिन दरमियानी और तवील मुद्दत में हम बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए वसाइल तलाश कर रहे हैं। हमें इसे पहले से बेहतर और सबके लिए तामीर करने की ज़रूरत है। लिहाजा यहाँ हम तालीम को उस सरमायाकारी के एक अहम हिस्से के तौर पर देखते हैं जिसकी बच्चों को स्कूलों में वापसी के लिए ज़रूरत है। Children back into school. तो अंशुमन, क्या एक्सपेक्टेड है पाकिस्तानी हुकूमत से? कोई इस टॉपिक पे बात हुई, कोई इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली बात हुई कि पाकिस्तानी की हुकूमत से अक़वाम मुत्तहिदा क्या एक्सपेक्ट करता है इस पूरे मामले में? तो असद, यही बात हमने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से पूछी कि किस तरह की कमिटमेंट पाकिस्तानी हुकूमत से यूएन एक्सपेक्ट कर रही है, तो उन्होंने ये कहा, हमें पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तालीम से मुताल्लिक़ उस बेहतरीन अज़्म की ज़रूरत है जो वो इस वक्त दरपेश आफत में दिखा सकते हैं। उन्हें बैनुल अक़वामी ताउन चाहिए और इस ताउन के हुसूल की कोशिश के लिए ही सेक्रेटरी जनरल अपील कर रहे हैं और इसके लिए मुख्तलिफ सतहों पर इंतहाई बड़े पैमाने पर यकजहती की ज़रूरत है। इसका एक पहलू इंसानी है, लेकिन इसका एक मुआशी पहलू भी है। आप जानते हैं कि ये आफत एक ऐसे वक्त में आई है जब दुनिया कोविड से बहाली की और यूक्रेन की जंग के असरात से निमटने की कोशिश में है, और तब माहौलियात से मुताल्लिक़ ये गैर मामूली वाक़या हुआ। असद, हमने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से ये भी सवाल पूछा कि अफगानिस्तान में खासकर लड़कियों की एजुकेशन पर जो स्ट्रिक्ट पाबंदियां लगी हुई है, उनके चलते यूएन क्या कदम उठा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे तालिबान हो या दूसरे गैर सरकारी तंजीमें जो वहाँ काम कर रही हैं, तो यूएन उन सबके साथ मिलकर इस समस्या, इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ दोबारा ये कहना चाहूँगा कि अब तक हमारे पास ये भी जानकारी है कि मंडे के दिन वर्ल्ड लीडर जो अपनी बात रखेंगे, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक वीडियो के जरिए अपनी कमिटमेंट का इजहार यहाँ करेंगे। वो खुद यहाँ मौजूद नहीं होंगे। ये अब तक जानकारी है यूएन से मिली हमें। थैंक्स असद। बहुत शुक्रिया अंशुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे न्यूयॉर्क में यूएनजीए का जो समिट हो रहा है उसके बाहर से, और जो इस वक्त डेवलपमेंट खास तौर पे एजुकेशन समिट के हवाले से, जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुई, उस पर आपने हमें अपडेट किया। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA प्लस पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को जहां कई मुश्किलात का सामना है, वहां मच्छरों और मक्खियों की बहुतात और आलूदगी की वजह से फैलने वाले अमराज के साथ साथ कई इलाकों में सांप के काटने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। मुर्तज़ा ज़ाहरी बलोचिस्तान के इलाके डेरा अल हयार की सूरत हाल बता रहे हैं, जहाँ अस्पताल रोज़ाना सांपों के डसे हुए मरीजों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक हमारे तरफ सैलाब है, दूसरे तरफ से सांप काट रहे हैं, हम कैसे करें, बड़ी मुश्किल है हमारे पास। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन दोहरे अजाब में मुब्तला है। एक तरफ तो सैलाब में उनके मकान डूब गए और वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब सांप के काटने के वाक़यात में भी इजाफ़ा हुआ है। इस वक्त मैं डेरा अल हयार के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत से ऐसे मरीज़ों को लाया गया है
जिन्हें सांपों ने डसा है। हमारा गोट है, अभी तक उधर 8 फुट पानी चल रहा है। सामान निकालने के लिए गया, मैं हाथ में सांप हमको खाया। फिर हम बर बैबान में ऐसे पड़े हैं, शाख के ऊपर कंधे पर पड़े हैं, नहीं कोई टेंट वगैरह का चीज़ भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है। इस वजह से हम इधर आए हैं दवाई ले सरकारी अस्पताल पर। हमने देखा कुछ नहीं, ऐसा समझा कि जग छत लगाया। फिर हमने पता भाई ये खारस दे रहा था, खारस देखे ऐसा फौजी हो गया। हमने देखा कुछ नहीं है, हम अपने बच्चों को साथ निकल गया, कुछ नहीं निकला हमने। हम बच्चे वहाँ पे पड़े हैं, भाई बस 4 बाबू नीचे से बैठे हुए हैं, किसी ने इमदाद नहीं किया। हम तो यहाँ पड़े हैं, पता नहीं उसको क्या होगा। जब से सैलाब आया हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ अगस्त के महीने में जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यहाँ पे आके ट्रीट हुए हैं, 57 पेशेंट्स हैं जो कि स्नेक बाइट्स हैं। इसके अलावा अब सितंबर में अब डेटा चूँकि हमारा मंथली कंपाइल होता है, डेली बेसिस पे 3-4 अभी आपने वार्ड देखा होगा, तकरीबन 4 मरीज़ वहाँ पे स्नेक बाइट के पड़े हुए थे। ASV हमारे पास इस वक्त 900 वायल्स हमारे पास मौजूद हैं और ARV हमारे पास 1616 वायल्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि काफ़ी हैं। पूरे 6 to 7 मंथ्स में अगर ये पीरियड चलता है तो उनको कैटर करने के लिए ये काफ़ी है हमारे पास। हालिया सैलाब के दौरान दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इनमें अमेरिका में आबाद सिख कम्युनिटी भी शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयज़ा इरफान ने अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में मौजूद सिख कम्युनिटी के चंद नुमाइंदों से बात की जो पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब आए हुए हैं। सिंध समेत बहुत से इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सिख मजहब में हमारा ये फर्ज है कि मुसीबत में आगे बढ़कर इनकी मदद करें। अगर ज़रूरी हुआ तो हम खुद भी वहाँ जाएंगे। मेरा बेटा एक मेरीन है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चाहूँगी कि वो भी वहाँ जाकर इनकी मदद करे। परमजीत का ताल्लुक अमेरिका में भारत से आई सिख कम्युनिटी से है। इनसे हमारी मुलाकात एक मुकामी गुरुद्वारे में हुई, जहां यूनाइटेड सिख्स नामी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले हरदयाल सिंह पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में अपने इदारे के रिफाई कामों से मुकामी सिख कम्युनिटी को आगाह कर रहे थे। यूनाइटेड सिक्स पाकिस्तान विच इस वेले अप्रॉक्सीमेटली सानू अराउंड 13 साल हो गए। यूनाइटेड सिक्स को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुए तकरीबन 13 साल हो गए हैं। हमारी टीम लोकल कम्युनिटी और वॉलंटियर्स के साथ सरगर्म होकर सवात, पंजाब के कुछ इलाकों, बलोचिस्तान और सिंध में मदद पहुंचा रही है। इन्हां सारे इलाकों च असीं जिहड़ा हैगा राहत जिहड़ी पहुंचा रहे हैं। सिख पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का 1% भी नहीं है, मगर दुनिया भर से हर साल हज़ारों की तादाद में सिख पाकिस्तान में ननकाना साहब, हसन अब्दाल और करतारपुर में अपनी मजहबी इबादत गाहों की यात्रा के लिए आते हैं। ये मजहबी वाबस्तगी इस कम्युनिटी को पाकिस्तानियों के ज़्यादा करीब करती है। जब भी इतना दा कोई मुश्किलात उत्थे आंदी है, जब भी ऐसी कोई मुश्किल वहाँ आती है, हमें लगता है हमारे अपने घरों पर मुश्किल आन पड़ी हो। इसलिए आज सिख कम्युनिटी में हर घर में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें हमें बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। आगे आना चाहिए। साडी फीलिंग है जो इस वेले बहुत दुखी एहसास है, ऐसे जैसे वो फंसे हुए बच्चे हमारे अपने बच्चे हों। दुनिया भर की सिख कम्युनिटी मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तानी सैलाब-ज़दगान की मदद कर रही है। यूनाइटेड सिक्स का काम इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये इदारा पहले से ही वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद है। इनके ट्रेन स्टाफ और वॉलंटियर्स में सिख और मुसलमान सभी शामिल हैं, जो मुकामी आबादी की बराह रास्त मदद कर रहे हैं। यूनाइटेड सिक्स इज़ अ यूएन एफिलिएटेड एनजीओ। यूनाइटेड सिक्स अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता एक गैर सरकारी तंजीम है। हमें बुनियादी तौर पर यूएन के इदारों से ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ऐसे वाक़यात में मुसलसल मदद दरकार होती है। इसके अलावा यूएन से वाबस्तगी की वजह से हम यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी वाबस्ता हैं, और जिन इलाकों में इमदाद नहीं पहुँच रही वो हम इन इदारों के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांत है, किरत करो वंड छको। गुरु नानक देव जी का कहना है, मेहनत करो, ज़रूरतमंदों के साथ बांटो और खुदा की तारीफ करो। और ज़रूरतमंदों की मदद का यही उसूल है, जिसकी वजह से इंसानियत पर जहाँ भी मुसीबत आती है सिख वहाँ पहुँचते हैं। और फिर पाकिस्तान तो जैसे सिखों का हिस्सा है, हमारे बहुत से गुरुद्वारे वहाँ हैं और हमारे बुजुर्ग भी पाकिस्तान से आए। तो हम पाकिस्तानी अवाम से ये कहना चाहते हैं कि हम हर मुसीबत में उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत हो तो हम तन मन धन से सेवा के लिए तैयार हैं।
समंदर पार से सिख कम्युनिटी के पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की जानिब खैर सगाली के ये जज्बात और यूनाइटेड सिक्स जैसी तंजीमों की कोशिशें ये पैगाम देती हैं कि इंसानी मदद का जज्बा बेशक मजहब और मुकाम की कैद से आज़ाद है। आयज़ा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यू जर्सी। आज़ादी के 75 साल, सुनिए इन 75 वर्षों की तारीख। उनसे जो गवाह हैं कामयाबियों और नाकामियों के, जो याद करेंगे उस गुजरे वक्त के अच्छे और बुरे को, और उनको जिन्होंने की जदोजहद, समाजी आज़ादी और बराबरी की। बयान करेंगे माजी के हक़ाइक़, खेल और आर्ट से लेकर जमहूरियत और आमरीत तक। सुनिए उनको जो शाहिद हैं उन 75 सालों के। VOA उर्दू की खुसूसी पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान के 75 साल में। मुख्तलिफ अमरीकी कंपनियों के आदादोशुमार के मुताबिक अमरीका में इलेक्ट्रिक कार्स की शरह अमरीका में गाड़ियों की मजमूई तादाद का तकरीबन 3% है। अमरीका की मौजूदा इंतज़ामिया की कोशिश है कि सन 2030 तक अमरीका में बिकने वाली हर दूसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निज़ाम चार्जिंग स्टेशंस के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए सदर बाइडन ने 35 अमरीकी रियासतों में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जर्स का नेटवर्क बनाने के लिए $900 मिलियन का ऐलान किया है। बुध के रोज मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो में सदर जो बाइडन ने, जो खुद को कार गाय कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक कैडिलैक SUV की टेस्ट ड्राइव की। उन्हें अमरीकी कंपनीज की तैयार करदा गाड़ियों के ताज़ा तरीन ग्रीन मॉडल्स यानी माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल्स दिखाए गए और सदर ने 35 रियासतों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज करने वाले स्टेशंस का एक नेटवर्क बनाने के लिए $90 करोड़ का ऐलान किया। आप सब 5 लाख चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में फैले 5 लाख स्टेशंस। ये फंडिंग उन $7.5 अरब का हिस्सा है जो सन 2021 के बाई पार्टीजन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ के तहत EV चार्जर्स के नेशनल नेटवर्क की तामीर के लिए मुख्तस किए गए थे। इस कानून में $7 अरब इलेक्ट्रिक बैटरी की तैयारी के लिए जरूरी मादनियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए और $10 अरब क्लीन ट्रांजिट और स्कूल बसों के लिए शामिल हैं। सदर बाइडन ने हाल ही में कानून साजी की दीगर कामयाबियों पर भी रोशनी डाली, जिनमें इफरात ज़र में कमी का एक्ट शामिल है जो EV सप्लाई चेन को मजबूत करता है, और चिप्स और साइंस एक्ट जो मुल्क के अंदर सेमीकंडक्टर की तैयारी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। हमें बहसियत कौम अपनी सबकत खोने का खतरा है और चीन और बाकी दुनिया हमारे बराबर पहुंचने को है। तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे की सन 2022 की ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल ये अमरीका है जो चीन और बहुत से यूरोपीय ममालिक से पीछे है। अमरीका को इन ममालिक के बराबर पहुंचने के लिए विफाकी फंडिंग की जरूरत है। लोग उस वक्त तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने से हिचकिचाते हैं जब तक कि इन्हें यकीन ना हो जाए कि चार्जिंग के लिए नेटवर्क दस्तयाब है, खास तौर पर जब वो घर से दूर तवील फासले के सफर पर हों। इसी तरह कंपनियां चार्जिंग नेटवर्क की तामीर में इस वक्त तक सरमायाकारी नहीं करना चाहती जब तक कि इन्हें तलब नजर न आए। हालांकि सन 2021 में अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त दुगनी से भी ज्यादा होकर 6,30,000 हो गई थी। यूरोप में फरोख्त 65% बढ़कर 23 लाख हो गई। चीन में ये फरोख्त तकरीबन 3 गुना बढ़ी और 33 लाख हो गई, जो कुल आलमी फरोख्त का निस्फ है। इफरात ज़र में कमी के कानून के तहत अमरीकी साख्ता इलेक्ट्रिक कारें खरीदने वाले अमरीकी 7,500 तक फेडरल टैक्स क्रेडिट वसूल कर सकते हैं, लेकिन 50 गैर मुल्की मॉडल्स के लिए दिए जाने वाले टैक्स क्रेडिट खत्म हो जाएंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि ये एक तरह का समझौता है। हम अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग की और अमरीकी ऑटो इंडस्ट्री की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, लेकिन माहौलियात से मुताल्लिक अपने अहदाफ तक पहुँचने के लिए हम ये भी चाहते हैं कि लोग जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें। बाइडन इंतजामिया को एक ऐसे वक्त में इन अहदाफ में तवाज़ुन लाना होगा जब वो मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को कम करने पर काम कर रही है। पेट्सी विदा कोसवारा की रिपोर्ट के साथ खालिद हमीद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।